So today we are going to start with a new chapter, that is lines and angles. In this there are few basic terms that you must know. So first thing is you should know what are complementary angles. Complementary angles. So if x and y are complementary, their sum will be 90. Supplementary angles. X and y are supplementary, then x plus y will be 180 degrees. This single line is known as a ray. Let's say we'll name it as OA. Then there is another ray OB. And this is the angle enclosed by two rays. This particular point is known as vertex. And OA and OB are known as arms of angle, arms of an angle. Then there are various types of angles. For example, if you draw such a diagram, this is OA and this is OB. This is known as right angle, meaning measure of this angle is 90 degrees. Then if a measure of angle is less than 90, in this case this angle is less than 90, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB is less than 90 degrees. Such an angle is known as acute angle. Then OA, and if the measure of angle is greater than 90, in this case, so यहाँ पे angle AOB is greater than 90 degrees. So such an angle is known as obtuse angle. If a measure of an angle is equal to 180 degrees, so this is arm OA and this is arm OB, the measure is exactly 180 degrees. This is known as a straight angle. And let's say if we have such an angle, OA and OB are the arms, and if you take this measure, this is known as reflex angle. Then there is something known as adjacent angles. So if we have a ray OA, we have another ray OB, and we have a third ray OC. So these two are known as adjacent angles. Angle AOB and angle BOC are known as adjacent angles. They are adjacent to each other, बाजू बाजू में है. इसमें क्या होता है कि इनका एक कॉमन आर्म होता है. दिस पर्टिकुलर आर्म इज नोन एज कॉमन आर्म. And these two are uncommon arms, not common arms. Fine. Then there is one more term that you must know, that is vertically opposite angles. So if you have a straight line मतलब उसमें दो रेस होती हैं, इस तरफ भी इस तरफ. So likewise we have another line, and these two angles are known as vertically opposite angles. So AOB is a line and COD is a
another line, they intersect at O, and these two are known as vertically opposite angles. Angle AOC and angle BOD. They are vertically opposite angles. नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इन अ प्लेन, जैसे एक पेज एक प्लेन है, तो इसमें या तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या तो दो लाइंस पैरेलल होंगी. तो इधर टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. So this is known as intersecting lines, this is non-intersecting lines or parallel lines. Okay, next आपको ये term समझना है, axiom, and there is something known as theorem. Now what is axiom? Axiom is a statement, mathematical statement whose proof is not required. ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या एक रिजल्ट है whose proof is not required, or that these are universal, you can call them as universal obvious truths. That is known as an axiom. And theorem is something for which you need a proof. कि theorem अगर आप कोई statement लिखते हो तो आपको उसका proof देना है कि वो कैसे आता है. So theorem is a mathematical statement which needs or requires a proof. Proof must be given. तो एक्सियम पहला देखते हैं इस चैप्टर का, एक्सियम 1. If a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्रीज. बहुत ही इजी रिजल्ट है. तो क्या कहता है ये रिजल्ट कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है AOB और एक रे स्टैंड कर रही है इस लाइन के ऊपर OC, तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स बने, ये x और फिर यहाँ पे y बना, इनका सम हमेशा कितना आएगा? इसका सम हमेशा आएगा 180 डिग्रीज. फिर इसी का उल्टा एक एक्सियम है, एक्सियम 2 ऑफ दिस चैप्टर. इफ सम ऑफ टू adjacent angles is 180 degrees, then non-common arms form a straight line. देखो अगेन ये काफ़ी इजी है समझना कि आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स है, ये रहे दो एडजेसेंट एंगल्स, और अगर ये दिया है कि x + y 180 है, ये दिया हुआ है, तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हुए? ये तो कॉमन आर्म हो गया. नॉन कॉमन कौन से हुए? OA एंड OB. सो OA और OB मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या बनाएंगे. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है. अब आते हैं इसके पहले थ्योरम पे. इस चैप्टर का जो पहला थ्योरम है, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमको प्रूव करना है। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए ओ बी सी ओ डी। नाउ लेट्स से this is straight line, fine. If you take this angle as x and take this angle as y, तो डेफिनेटली यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये रे है, और रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन एंड x एंड y आर एडजेसेंट, तो यू कैन राइट x प्लस वाई इज 180. Similarly, CD is a straight line and y and z are adjacent angles. This is a common arm. So what is y plus z? Y plus z will be 180 degrees. राइट हैंड साइड इनका इक्वल है 180 180, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे तो x प्लस वाई इज सेम एज y प्लस z. y will cancel out and you'll get x is equal to z. और हमने देखा था ये एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और अभी हमने क्या प्रूव कर दिया कि उन दोनों का मेजर क्या होगा, सेम होगा. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब हम लोग देखने वाले एक सॉल्व एग्जाम्पल 2 जो दिया हुआ है. इट्स गिवन दैट ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू. रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ओ आर जो है इसका एंगल बाइसेक्टर. सो इफ दिस एंगल इज एक्स, दिस इज एक्स, देन वी हैव रे ओ टी विच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एस ओ क्यू. This is OR. If this is Y, then this is Y. Okay, what we have to prove is उन्होंने ये दिया हुआ है कि POS एंगल को अगर आप X लेते हो तो ROT क्या है. खैर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि इसको X ले लिया है. एनीवेज तो जो रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं होगा. हमारा मेन मोटो ये है कि इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ROT ये क्या निकल के आ जाएगा. ओके, व्हाट इज एंगल ROT, दैट वी हैव टू सी. नाउ सी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइन, एंड दिस एंगल एंड दिस पर्टिकुलर एंगल दे आर एडजेसेंट एंगल्स. तो इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, ये होगा 180, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. इसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं, लाइन के ऊपर फॉर्म करने वाला पेयर, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर. सो यहाँ पे x प्लस वाई कितना होगा, अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई होगा 90. नो ऑब्जर्व व्हाट इज x प्लस वाई, ये x एंगल और फिर ये y एंगल, और x प्लस वाई जब आप करोगे तो क्या एंगल बनता है, ROT एंगल बनता है. इसका मतलब एंगल ROT क्या है, 90. हो गया, यही हमको निकालना था इसमें. सो दिस इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2. अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे इसकी एक्सरसाइज पे. इसकी एक्सरसाइज 6.1. तो एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है AB, दूसरा स्ट्रेट लाइन है CD. इट्स गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE, तो इन दोनों का जो सम है वो है 70. फिर एंगल BOD ये 40 दिया हुआ है. नाउ दिस इज़ 40, दिस टू आर वर्टिकली अपोजिट, तो ये होगा 40. AOC अगर 40 आ गया तो हम लोग अगर यहाँ पे 40 पुटअप करें तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70. तो यहाँ से एंगल BOE निकल के आ जाएगा. एंगल BOE इज इक्वल टू 40 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 70 माइनस 40 इज 30. सो BOE दिस एंगल इज 30. यहाँ तक हम लोग पहुँच गए. अब हमको निकालना है BOE. ये देखो निकाल दिया हमने, BOE इज 30. एंड फाइंड रिफ्लेक्स एंगल COE.
नाउ सी ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे 40 निकल गया, यहाँ पे 30 आ गया। ये जो एंगल है अगर हम लोग इसको x लेते हैं तो 40 x और 30 ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले एंगल्स है, तो इन तीनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 40 फिर प्लस x प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 180। दे स्टैंड ऑन अ लाइन, ओके। तो x का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 40 प्लस 30 इज 70, 70 यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 110 डिग्रीज। सो दिस मेजर इज 110, फाइन। तो सी ओ ई हमारे पास आ गया 110, बट हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। तो कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये सी ओ ई एंगल ऐसा है 110 डिग्रीज, बट हमको निकालना है इसका रिफ्लेक्स एंगल। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है, ये ऐसे, ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो टोटल कितना होता है 360 होता है, तो ये एंगल अगर हमको निकालना है तो ये कितना होगा 360 में से 110 हटा दो, क्योंकि पूरे राउंड द सर्कल जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। अगर ये 110 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 360 में से 110 हटा दो, सो यहाँ पे आएगा 250 डिग्रीज। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है दैट इज़ 250 डिग्रीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. What all things are given? XY is a straight line, MN is a straight line intersecting at O. POY, this is 90. Here we have OM ray and here is angle A, angle B. A is to B का रेशो है 2:3 एंड हमको ये C एंगल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो अगर A अपॉन B ये रेशो 2/3 है तो कॉमन मल्टीपल लेते हैं। A को क्या लिया जा सकता है 2x, B को क्या लिया जा सकता है 3x, x इज़ द कॉमन मल्टीपल। ऑल्सो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर के सारे एंगल्स का एडिशन कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस 90, A प्लस B प्लस 90, ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो A प्लस बी कितना आएगा, A प्लस बी आएगा 90 डिग्रीज, 90 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। अभी A 2x है, B 3x है, ये यहाँ पे पुट कर दो, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। यहाँ से कितना आएगा 5x इज इक्वल टू 90, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्रीज। तो हमारे पास B एंगल निकल के आ जाएगा। B है 3x, x का वैल्यू है 18, तो B का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू x 54 डिग्रीज। तो ये B एंगल हमारे पास आ गया 54 डिग्रीज। हमको C एंगल निकालना है। ये B और C एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो B प्लस C होना चाहिए 180। B है 54 प्लस C है 180, तो C का मेजर कितना होगा 180 माइनस 54, 126 डिग्रीज। तो ये आंसर है, C इज़ 126 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमको ये दिया हुआ है ST is a straight line and PQ or PRQ, these two angles are equal and we have to prove PQS angle is equal to PRT। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो एंगल PQS प्लस एंगल PQR, इनका सम होना चाहिए 180। They form a linear pair और this is a ray standing on a straight line, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180। सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये भी 180 है। तो अब 180 180 राइट हैंड साइड सेम है, इक्वेट कर दो इनका लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे
क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इट इज़ इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अभी पी क्यू आर का मेशर, पी क्यू आर का मेशर और पी आर क्यू का मेशर, पी आर क्यू का मेशर सेम है, तो ये दोनों टर्म्स सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का ये टर्म, राइट हैंड साइड का ये टर्म सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, पी क्यू एस इट इज़ इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी आर टी। तो ये हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमको, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो बाकी के सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।